Good evening, sir. Good evening. How are you all doing? Good evening, sir. Good evening. All well, sir. All well. Chalo, I think I'll start the PPTs and the presentation along with the charts and the tools which I use. Initially, let's keep no interruptions in between. Once I finish, I will give you time for all the questions and answers. Are we clear? In between, if there is a problem, just send a chat message and someone would monitor that. All right. Are we clear, guys? Yes, sir. Hello. Yes. Yeah, definitely. Yes, Yeah. sir. Yes. Okay. So that's how we are going to be starting now. All Sir, right. please give record permission. गुड इवनिंग सर। Good evening, beta. कैसे हैं सर Good आप? evening. Good evening, everyone. Hello. अशोक मुझे पीपीटी शुरू करने हैं, कहाँ से शुरू करना? कैसे करूँगा? इसको बंद कर दूं जो स्क्रीन खुली हुई है? कर दिया। Okay, guys. The first PPT is going to be about an introduction to Elliott waves. अशोक ये हैंग कर रहा है यार। Okay, Elliott waves. Okay. All right, guys. This is the structure of Elliott wave. 1, 2, 3, 4, 5. And then there's a correction which is called ABC. Now, I'm only talking about a bull market move at this point. Okay. Now, what I'm starting with is the structure of Elliott wave. Now, this is the very basic structure of Elliott wave. What I'm considering here is only a bull market as of now for an explanation for you guys. All right. Now, this phase of 1 and 2 is called a phase of accumulation. This is the phase where there is total disbelief that this market is going to go up. Now, from once we cross 3, we move into a phase of distribution where we talk about that market is now going to be moving out of a buy move. All right, this is a basic structure, the phase of accumulation, the phase of expansion, and then comes the phase of distribution. Now, this is what I want you to read. Accumulation is a phase when there is a total disbelief that market will go up. Expansion when market moves rapidly. Sometimes even the pullback doesn't come.
distribution, no one believes that market is ever going to come down. All right, these are two very important phases of the market. Now, Elliott chart has a certain shortcoming, which if you read this, you would understand what I'm saying, okay? Every corrective wave has got to have a ABC formation in it. Till this ABC formation doesn't come, it is not a Elliott wave. It could be a technical buy. So there are two kinds of buy. One is a technical buy and second is an Elliott buy. Now that means we are talking about wave within the waves which are being formed. Now the key to deciphering Elliott is if you can find the waves within the waves, then you are done with Elliott. Okay. Now all these wave counts have a very definitive notations, which I'll show you subsequently as we finish this PPT. Now this is the place where the up move would start. 0, 1, 2 is a corrective move. Now this corrective move is a function of Fibonacci retracement. All right, the deeper it goes in 1 and 2, the better it gets. All right. Now, what I want you to understand is it's a typical solution of a third wave. A typical third wave is when the one stop loss is taken out, market would not even give you a time to enter. It'll just move in gaps or it'll move very rapidly. This is a problem, you know, but when you're looking at 1, 2, is a place where we need to always enter. And a typical third wave characteristic is that it'll move very rapidly up. Okay. Wave 4 is a corrective wave. All right. Now this corrective wave actually is probably the last leg of market is about to start now. This is a basic structure. So that means when we are talking about Elliott, we are anticipating levels. Okay. Now, once I have finished my fourth wave and I've finished my fifth wave, the market would start coming down. And usually this is the level where retail investors start looking at entering the market. Now understand this structure. This is 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, and then the downtrend starts. A is down, B when market is going up, and everyone starts believing that all is well, ab market upar bhag jayegi. This is something which doesn't happen. This is where once this A is taken out, markets would fall very rapidly. Okay, understand this configuration. This is very important. 0, 1, 2, 3, 4, 5, and then ABC is the corrective format. All right. Now, this is how we mark the waves within the waves. All right. Secondary trend is the smallest trend. Intermediate trend is kind of a middle trend. Primary trend is where we look at market moving in a major cycle, and then comes the super trend, which becomes a very big cycle. Now, there is a problem in Elliott. Elliott goes into extensions. So that means any top which we can take can go wrong 4 times. Remember this. This is a very important part of Elliott. Okay. Now I'm going to show you again something else. Let's come back to this marking. Now you've understood 1, 2, 3, 4, 5, right? Now in 1, 2, 3, 4, 5,
the corrective waves are not visible. So these are not Elliott buy. Understand this. That is why we need to look at the corrective waves, which must have 3 legs. So obviously this will become one of a larger frame, 2 a correction, and the big move is going to start. Now, typically this phase of a market is just a momentum play. It is not a positional play. The moment market moves into this structure, it becomes a positional play. Are we clear with this? This is a very simple, basic concept. If you have any questions on this very basic, simple concept, you can ask right now. Anyone has any question on a simple, basic concept, you can I can take questions here. Because before I start, that basic structure needs to be clear to everyone. Is there a question here? Yes, sir. I have a question here. Yeah. So these waves should be plotted on the graph to identify on a daily chart, or at the You time can duration? do it. You can do it in any frame. See, today's topic is we are talking about Elliott wave construction in intraday. All right. Okay. Why is this very necessary at this point of time is, if you're trading in a normal way in this market, every day your stop losses would be taken out. The volatility is so high that a traditional technical analysis tool is bound to fail. Okay, understand this. I mean, just look at it today. For last 2 days, market was kind of correction, right? और आज शाम को क्या हुआ यार? It just ran up. That's All right. And this structure was ready in Elliott. All right, this is what I'm going to show you today. All right. Sure, sir. As a small request, so the wave that you just showed, Yeah. will it be possible for you to show us some intraday chart where it has got formed? Yeah, we are going to mark it together. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Okay, Appreciate it, sir. That's the whole idea of doing it, right? Okay. Now, And sir, what will be the entry point from this? you will understand everything right now. All right. Fine, sir. Okay. I'm Thank you, trying sir. to do whatever best I can do in 1 hour. See, basically, the course which we run is tuned on Elliott wave. Okay. A large part of that goes into Elliott wave. Now, we've been getting requests from a lot of people who know technical analysis. They say that we know traditional tools. We just want to do Elliott as a topic. All right. So basically we are doing a program now, which will be about 7 days program only on Elliott. All right. And I will include some GAN into it for time forecast. Okay. To attend this course, sir, one need to have the basic courses already been done to understand Elliott, or it can be for the new starter as well. If you can read chart, I mean, if you know basic stuff like oscillator, moving average, chart pattern, support, resistance, trend lines, all that if you know, then you come only for a Elliott course, right? And if you do not know it, then probably it will become slightly difficult. But yeah, if you understand Elliott, basically you don't need any tools. All right. So at the end of the course, when guys finish a complete course with me, they end up telling me, sir, Elliott is the key to everything. And the reason why Elliott is so important is we anticipate a market. Understand the difference. When I'm trading a market, I'm trailing a market, right? And when I'm looking at Elliott, I'm anticipating a top or a bottom in a market. Do you understand that? That is the difference. Are we clear? Yes.
Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, there's a lot of detailing here. Now, I'm just showing you this, okay? Now, this is something very, very interesting. Now, this is how the corrective waves get formed. All right, they have certain proportions in it, okay? These are various types of corrective waves. This will all make a lot of sense when you're doing a course. We spend a lot of time in reading the corrective wave pattern behavior. All right. Okay, now the basic structure is complete, right? Now I'm starting with Bank Nifty. Okay. All right, sir. Why Bank Nifty? I'll tell you why. Because one, I trade Bank Nifty. Okay, personally. I'm a full-time trader on Bank Nifty, and on my Facebook page, I post Elliott wave, the way they are being formed, and I've been posting it very regularly for almost last 2 to 3 months now. All right. All right. Now there are various formats of tools. Let me first show you the different types of chart. These are Kagi lines, right? Have you seen them? Has anyone in you seen Kagi lines before? Yes, I have. Okay. I don't know, sir, whether I have seen this Kargi line, but looks like that I have seen the same pattern in ICICI Bank's chart formation today. Okay. Now look at this. Now I like to use Kagi lines for creating a Elliott structure. Okay. I'll show you. It's the simplest way to create an Elliott structure. I'm catching this top. Can you see this? Now I have a bottom. I'm marking this as 1. Now I have another structure here which I'm marking it as 2. Okay. Now this structure in itself is a secondary wave structure. Now I'm going to project the target here. This market has just run up like nobody's business, right? So I can call this as a 3. Okay. Now, if I have a 3, I must have 4 because 5 is where the number ends. Okay. Now, there's a relation between both. If I look at 0, 1, 2, this has done about 100%. Now, I'm looking at 2 to 3. When it's gone up, how much has it gone up? It's not even completed 23%, right? Wait a minute, I need to put it the other way around. Okay. Now this is not even completed anything here. So this is obviously not 3 because when it corrects, it must come to a certain level. This is 3. It's retraced up to 50%. 1 to 2 went to 100%. So this is 4. This now from here on, I know we are in the last leg of a downtrend. Okay. This is how a very simple structure gets created in a market. It's just a basic view for you guys to understand.
I'm reducing lot of noise here to create just a structure around. Now this is a tool where I'm using, this is something which can be traded. It tells you the trend, it tells you overbought, oversold levels. It shows you everything here, right? Anyone has an English issue, then मैं हिंदी में साथ में बोल लेता हूँ, ठीक है? अब इसके अंदर, if you notice, there would be various colored lines which are moving. Now we are talking about wave. Within the waves is the structure, and this is a complete trading system in itself. ये अपने आप में it's a complete trading system. The moment I start cutting the data, you would understand what I'm doing. Okay, I'm just showing you the structures. This is again for Elliott marking, which is giving me at different levels support and resistance levels. Okay, they are very clearly marked and defined here. This is my trading tool where I'm using VWAP, and these are specially constructed tools. The dots on the top say market is overbought, but do not go short as of now. The dots at the bottom are showing you that market is oversold, but do not go long. Okay. This is showing you a trend. This is a buy trend, red is a sell trend, and black is that market does not have a trend. Okay, these are the basic structures for the market. Now I'm starting with a very simple plain chart. It's a very simple plain chart. I'm not using anything here. This is a 30-minute chart, right? Now, if I start marking it with a naked eye, I can see this as a bottom. I can see this as a top. This at a bottom, which I'm calling 2. And when this 1 is taken out, we call it 3. All right. It should have hit 161. It has not. The wave count has failed here. Okay. Now I'm starting from here, the top part. This is 0 on a downtrend. This is 1. This is 2. It's retraced almost 100%. Three,
then I see a 4, then I see a 5 here, and then market has gone into an extension. I'll call this a X. All extensions in Elliott terminology are called X. X denotes extensions in the market. Now the problem with this wave count is that I cannot figure out the waves within the waves, the way they are being formed. Okay. Now to address this, I'm going to use a trading system where I can catch waves within the waves. I'm starting from this state. This market is visible to you? Is this visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Look at the formation here. There are various lines here. Look at this color here. Can you see this? Now I'm marking this as 0. This as 1. Sorry. The 0 comes here. This is 1. Now, when I look at this chart, what I notice is that it is in a downtrend right now. You can notice this, right? Now, I had this, I knew the target in a small trend phase. It's already done 261. The green line, just notice the green line. It's moving up. Can you see this? Now, okay, we are only at 10 a.m. right now. सर आई हैव वन रिक्वेस्ट या सर हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलो आप क्योंकि है बोलूं हिंदी में भी सम पीपल आर अच्छा ठीक है मैं अभी बोलता हूँ बेटा साथ में ठीक है ये यहां तक समझ में आ गया 1 2 3 का नंबर समझ में आ गया 1 0 1 2 नंबर हो गए क्लास चलती है मेरी क्लास 3 नंबर इन लेवल्स पे आना चाहिए था उसके आसपास आ गया है ठीक है
अब अगर ये 3 नंबर कटेगा तो हम लास्ट लेग में नीचे जाएंगे, मतलब ये आखिरी रन होगा मार्केट का नीचे गिरने का। दिख रहा है? मार्केट ऊपर जा रही है, गई नीचे। Yes, sir. We are in the last leg of the short move. जो छोटी मूव थी मार्केट की, उसके हम लास्ट लेग में हैं। बड़ी मूव में अभी तक कुछ बना ही नहीं है, दिख रहा है? और इसके अंदर 2 वेव और चल रही हैं। ध्यान से देखो, लाल कलर की वेव एक अलग पैटर्न बना रही है, हरे रंग की वेव एक अलग पैटर्न बना रही है। ये की है इलियट को समझने की। सर ये प्लीज एक बार दोबारा समझा दीजिए। सर इतने सारे इंडिकेटर है, इतने सारे इंडिकेटर कैसे यूज होगा सर? ये इंडिकेटर नहीं है बेटा, ये तो ट्रेडिंग का सिस्टम है, ठीक है? ये मत देख। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज ये नंबर, मतलब मैं इस इंडिकेटर को हटा देता हूं। नहीं सर, ये जो आपने बोला ग्रीन लाइन एंड रेड लाइन, जिससे आप पैटर्न समझ के एलिट वेव बोल रहे थे, वो पूछ रहा हूं मैं आपसे। अभी दिखेगा, ये देख, बहुत आसान है। अब क्या प्रॉब्लम है? हरा रंग देखो अपने आप चल रहा है, 3 रंग चल रहे हैं, ग्रीन, रेड एंड ब्लू। कैन यू सी इट? यस सर। ठीक है, इसके अंदर क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? छोटा स्ट्रक्चर लास्ट लेग में है, ये बड़ा स्ट्रक्चर है। अब ये बड़े स्ट्रक्चर में 0 सबका सेम रहेगा। सॉरी टू इंटरप्ट सर, मगर ये रेड, ब्लू और ग्रीन लाइंस क्या डिनोट करते हैं? ये मूविंग एवरेज मार्केट के 3 ट्रेंड डिनोट करते हैं बेटा। मार्केट These are manually drawn lines or what? These are market trend lines which we are talking about as secondary trend, intermediate trend and primary trend. सेकेंडरी ट्रेंड, हरा ट्रेंड लाइन वो है जो सबसे छोटी है मार्केट में, जो बहुत तेजी से घूमेगी। लाल वाली, ये ट्रेंड लाइन जो आपने डाली है, ये मैन्युअली ड्रॉन है और ये ऑटोमेटेड है कुछ? नहीं, ये वो आई हैव क्रिएटेड सिस्टम फॉर दिस बेटा, यू हैव क्रिएटेड, राइट? व्हिच इज द पार्ट ऑफ कोर्स। ओके ओके, थोड़ा सा बाउंस आ रहा है, ठीक है, मार्केट में। क्या ये बाउंस एक्सपेक्टेड था? हमें ये देखना है। ये लेवल्स थे जहां पे मार्केट पे बाउंस आना चाहिए था। दिखा बाउंस? दिख रहा है? अब यहां से आगे चलते हैं। Sir, can wave 4 overlap wave 1? No. No. Then it becomes terminal. Okay. It doesn't take out the stop loss, but it becomes terminal.
All right. I'll explain after this. Okay. Okay, sir. Copy that. Now I'm coming on 17th. Can you see this? Okay. Now, obviously, I have a 3. This will be 4 if 3 is taken out. And possible target for this is around here. If this gets taken out, market goes into an extension. Extensions mean we are still close to a bottom, which can be coming very soon. नीचे आ गया. Can you see this? The market has come down. And immediate bounce. Now, look at this green line. If you look at this green line, it has started moving into a buy. If I show you this, you will notice. Okay. Now the target yesterday it gave was this 161. Sir, this is hourly chart. हाफ आवर होगा बेटा. आधे घंटे का है. ओके सर. आज आ गया. दिख रहा है? यस सर. Right. Now starts the interesting part. We are approaching a phase of correction in Bank Nifty on half an hour chart. This is my anticipation.
लुकिंग एट टुडेज मार्केट क्लोज कोई करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा, और ये इलियट एक है जो हमेशा बताती है कि इसके अंदर अब करेक्शन ड्यू है। दिखने लग गया? नाउ ये चार्ट देख लिया है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर आपको ट्रेडिंग टूल्स दिखा रहा हूं। ये 30 मिनट का चार्ट में दिखाने लगा हूं। मार्केट नीचे जा रही है, यहां तक कोई बाय का इंडिकेशन नहीं था। सिस्टम भी कह रहा था मार्केट ओवरसोल्ड में है, लेकिन अभी बाय मत करो। दिखा कुछ? नीचे देखो, अभी भी डॉट है, दिख रहा है? ये वाला डॉट है। नीचे डॉट नहीं रहा, इसने इसके ऊपर कह दिया बाय कर लो मार्केट को। अभी तक ट्रेंड नहीं शुरू हुआ है। ओके, नाउ इफ आई वांट टू क्रिएट अ इलियट, इट्स वेरी सिंपल फॉर मी। I don't know if it gets visible to you guys or not. 0, 1, 2, ये मेरा स्टॉप लॉस है। और ये मेरा मिनिमम टारगेट है 161 और 261। इसके लिए मैं एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डालूंगा। सर 1 तो बड़ी वाली बार को लेना चाहिए ना, ब्लू। हाँ, 1 तो सर बड़ी ब्लू बार को लेना चाहिए ना। यही तो प्रॉब्लम है ना बेटा, कि हम वेव के अंदर वेव नहीं पकड़ते हैं। वेव के अंदर की वेव पकड़। See, problem is everyone looks at Elliott as a view making tool, right? जी। No one treats Elliott as a trading tool. When you are using Elliott as a trading tool, it becomes a very different ball game. You get it? बट सर यही पार्ट इसका कंफ्यूजिंग है। हाँ, तो यही पार्ट तो सीखना है यार। मुझे सीखने में 10 साल लग गए थे, तो कम से कम कुछ तो टाइम लोगे ना सीखने में। यस श्योर। क्लियर हुए? अब ये यहां से अप मूव जाएगा 261 तक। ये इसका नाउ इलियट की ब्यूटी क्या है? इलियट की ब्यूटी ये है, मैं स्टॉप लॉस दे दूंगा लेकिन 5 से पहले नहीं निकलूंगा। दैट मीन्स माई स्टॉप लॉस
is deep and my targets are also very big. यहां मार्केट बंद हो गई है, ठीक है। सर ये 1 उधर क्यों लगाया, ये फंडा एक बार समझाइए ना। अभी लेट मी फिनिश देन आई विल टेक क्वेश्चंस बेटा। थैंक यू सर। Market is still in a buy. Look at these bar colors. They haven't turned red as yet. Market has got a trend. नीचे green आ गया है. Market trend पकड़ सकती है यहां पे. यहां पे शायद करेक्शन आएगी अगर इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो। अभी तक क्लोजिंग नहीं आई है। भाग गई। We have the target now. Can you see this? 261 हिट कर गई है। Now there are two conditions to the market. This is what Elliott is all about. एक तो ये वेव काउंट चल रहा है और दूसरा वेव काउंट ये चल रहा है। Someone was asking me about this, so I marked this as green levels. Okay, so there are two wave counts running in the market as of now. Are we clear with the concept? This is a trading system which I am talking about. Okay, guys? All right. Yes, now I'm open for questions. Ab bolo kya questions hain? One by one, please. Sir, may I ask? Kanhaiya, are you there? Yes, sir, I am here. Okay, so one by one, please. Sir, may I ask? Yeah, sure. Can I know your name, please, first? My name is Puneet. Yeah, Puneet, tell me. सर ये जीरो के बाद जो बड़ी बुलिश बार है सर, ये मेरे हिसाब से 1 उस पे लगना चाहिए था, पर आपने इसको बाद में लगाया। बेटा यही तो तुझे बता रहा हूं, दो वेव काउंट बन रही हैं देख मार्केट में। See, this is what I'm trying to say. You know, there are two wave counts which are visible to everyone. Usually क्या होता है, हम इसे 0, इसे 1, इसे 2 मान के चल पड़ते हैं जी। अब ऐसे सोच, अंदर की जो वेव बनी है वो कहां जाएगी? Can you see a 1-2 formation here also, right? Yes. This is the key to it. This is why Elliott goes wrong for people, because you don't catch wave within waves. Okay. तो क्या सर ये वेव विद इन वेव हमें आप एक बार दिखा सकते हैं 0 से 1 के बीच में? ये चल तो रही है तेरे सामने, ये रही ना, दिख रही है? नहीं सर, मैं इसे समझ नहीं पाया। एक मिनट रुक जा। पहले इसको ऐसे समझ, ये सीधी सीधी वेव काउंट एक बन रही है, ठीक है जी। अब इसमें इसके अंदर वेव विद इन वेव्स नहीं दिख रही हैं, ठीक है जी। अब इसको ऐसे समझ, ये भी दिख रही है। कैन यू सी दिस? जी। क्लियर, तुझे समझ में आ जाएगा। ये देख, एक 1-2 बना के ऊपर जा रही है, ये 0, ये 4-1 रिप्लेस हो गया
और ये जी। काट के ऊपर चली गई, दिख रही है? यस सर, नाउ इट इज क्लियर। ये अपने आप लेवल्स प्रोजेक्ट कर रहा है। नाउ these are what I'm showing you is various forms you can use. ओके, और इस सब को हमें कैलकुलेट करना इसको चाहिए। देख, यहाँ क्लियर दिखेगी। हाँ सर, यहाँ पे ब्लू लाइन Blue is है। 0, 1, 2 and red is 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे भाग रही है, दिख रही है? जी हाँ सर। So this is the game, right? यस सर। And yes, you do need a trading system because we anticipate a trading system. This is basically a very simple trading system which is identifying trend, non-trend, and then a momentum for the market. All right? यस सर। सर तो इसमें हमें वेटेज किसको ज्यादा देना चाहिए, कौन सी वाली हमें ट्रेंड को ज्यादा वेटेज देना चाहिए, जो बेटा, इनर ट्रेंड? इसको ऐसे समझ, हम सब एक इंडिविजुअल तरीके से सोचते हैं, ठीक है? Now, when I'm teaching you, I'm giving you 4 different alternatives. Okay. All right? Yes. Then you take a call which you like. Okay, it's up to me. Yeah, it becomes an individual choice ना। ऐसे सोच कि किसी को 100 पॉइंट निफ्टी गिर गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। And someone gets scared with 15 points fall, right? Yes, sir. So everyone has to define his own trading system. My way of teaching is I'll teach you in input blocks. Okay? Yes, sir. And when we finish, you combine everything and tell me this is the trading system I'm going to use. Okay. That's how I teach, right? Yes, I got your point, sir. It is great. Yes. Right. Thanks a lot, Anyone sir. else? Yes, sir. Anyone else with any questions? Sir, may I? Yeah, sure. Please tell your name. Sir, चिराग। हाँ चिराग, बोल बेटा। सर अभी आपने दिखाया जैसे वेव्स विद इन वेव्स, जैसे रेड वाला जो बड़ा वाला वेव था, हाँ। पहले 3 बनाया और एकदम से रॉकेट्स का स्काई रॉकेट हो गया ऊपर की तरफ। एक बात सोच बेटा, हमें पता था यहां से रॉकेट बन सकती है। बिल्कुल सर। ये फर्क है, समझ आया? इलियट का फायदा क्या है? अगर हम चार्ट देखते हैं तो हम तो वेट करते हैं ना भाई, कोई लेवल कटेगा तो हम काम करेंगे जी। इसमें क्या होता है, इसमें हमें पता होता है यहां पे लेवल कट सकता है जी। अगर यहां लेवल कट सकता है तो बेटा कैसे ट्रेड करेगा? सर सर मेरा क्वेश्चन एक्चुअली था, जैसे 3rd के बाद वो सीधा 4th पहुंच गया, बड़ा वाला वेव। हाँ, तो सर वो तो वो टिका नहीं, सुन वो टिका नहीं, वो ऊपर खुल के नीचे गिर गया। मार्केट गैप अप खुल के नीचे आ गई। बट सर उसने 4 वेव ने ओवरलैप कर दिया था 1 को, तो वो पूरा वेव सिस्टम नहीं बेटा, इधर देख, मैं इस पे आ रहा हूं, इलियट मार्किंग जी। अब देख 1 तेरा यहां है यार, 4 तो यहां पे खत्म हो गया, ये देख। और फिर हमेशा इलियट में क्लोजिंग लेते हैं, ये ओपन होके नीचे ठुक गई है, दिख रही है? जी। दैट इज द होल आइडिया। गैप अप मारा, वो न्यूज फ्लो था, उसके बाद नीचे ठोक दिया। क्लियर? और ये ओवरलैप में गया ही नहीं है, योर 1-2 वाज हियर, क्योंकि बड़े फ्रेम में तो अभी 1-2 बनाया ही है इसने ऊपर जाने के लिए। जी जी जी। क्लियर हो गए? जी सर, थैंक यू। राइट, आगे बताओ बेटा। एनीवन एल्स? What is your view on Bank Nifty? Bank Nifty is bullish for today, yaar, but I'm looking at a correction now. Kal
क्योंकि थर्ड वेव कंप्लीट कर रही है, इंट्राडे में करेक्शन या रेंज बाउंड है। Okay. ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। राइट। Oh, और बताओ। sir, Arnav this side. या Sir, which book you recommend for the reading more about the Elliott waves? इलियट यार पढ़ के बेटा, ऑनेस्टली बोलूं, आई एम नॉट सेलिंग माय कोर्स, ऑलराइट, डोंट थिंक ऑन दोज लाइंस। पढ़ के नहीं होगी। द प्रॉब्लम विद इलियट इज इसमें बहुत ज्यादा सब्जेक्टिविटी है। ठीक है, बट यार ट्रेडिशनली प्राशर को पढ़ ले, दैट इज अ गुड बुक टू रीड, बट इट इज वेरी सब्जेक्टिव बेटा। Understand it like this. I took almost 10 years to figure this out. All right. और वो झक्कियों की तरह पीछे पड़ा था, तब जाके वो 10 साल में समझ आई थी। Exactly, sir. More than आपने you would have read more than 5-10 books, then you got this knowledge. हाँ नहीं, I didn't get the knowledge by reading. I got the knowledge by observing the market बेटा। Got it? Done, sir, done. और ऐसे सोच, ये इलियट ही थी ना जिसने मुझे बताया था कि ये मार्केट नीचे गिरेगी, और 1.5 साल पहले से पता था ये मार्केट नीचे गिरेगी। मतलब 2018 के मेरे बैचेस को पता था कि ये मार्केट वहां से, कि ये मार्केट विल फॉल। रीजन नहीं पता था बेटा कि ये कोविड क्यों आएगा, और ये भी पता था ये इतनी ही गिरेगी। क्यों गिरेगी यार, इसका जवाब मेरे पास कभी नहीं है, और मैं सिर पटक चुका हूं इसका कि ये क्यों होता है, बट ये होता है। तो सर क्या आप इस सिस्टम से पर्टिकुलर लेवल्स तक भी बता सकते हैं? कैन वी डिफाइन इट कि ये इस लेवल्स तक जाए? दोज आर ट्रेडिंग लेवल्स बेटा। I mean, that's what I showed you, right? Now I am anticipating a correction in a market. ये हो सकता है कल गैप अप वो कितना डीप, कल गैप अप खोल के रेंज बाउंड कर देगा, वो भी तो करेक्शन है ना। यस सर। Correction need not be price based. Correction can always be time based beta. That is the key of Elliott. Okay. It can be shallow or deep, but it should be in a time frame. It has to either deep is the price or shallow is the time. So it must satisfy both the criteria. Okay. Okay. Sir, Quadra this side. Yeah. One question is there, the market corrected from Nifty, I'm talking about, it corrected from 1,300, 400 levels to like 75, 600 odd levels. Yes, yes. In the last session, I think I attended one more session earlier. तो उसमें आपने दिखाया था waves बना के. हाँ. एक बारी आप सर आप बताएंगे क्या लग रहा है future course of action as per? अभी पता ही नहीं यार, डेली में पता ही नहीं चल रहा, इसीलिए तो आधे घंटे पे काम कर रहा हूँ. अच्छा. I don't want to get caught on a wrong foot because fourth wave में you don't know what can happen, right? So the key to Elliott is that you move into two frames, one a small frame, one a large frame, right? On the daily chart frame, like on a daily chart frame, it is showing you nothing as of now. कितनी waves complete कर ली हैं सर इसने? Fifth wave कर ली? अभी तो वो third में ही चल रही है यार. अच्छा, okay. ठीक है. Now it is कि यहाँ से I am expecting a correction, so the best way is to move on to an hourly chart so that I don't get caught on a wrong foot. You're talking about trading basically, आप trading के No, I'm talking about investing beta. When I'm dealing with equity, I only invest, I never trade equity, I only trade indexes. And in trading an index, what I do is I trade options. This course is specially even designed for that. We teach derivative trading also here. Okay? Hello. Equity is just investing, yaar. ऐसे सोच. Equity. Are you following SBI?
I'm having. Yes, sir, I am. I'm keeping an eye on it. Yes. 205 के ऊपर क्लोजिंग में इलियट का फर्स्ट वेव मूव देगा. हाँ, yes, sir, you're right. Same with ITC. Yes, sir. Yes, sir. That level उसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो then if I buy it, I'm holding it. I'm not getting out of it. Yes, sir. Yes, sir. Accumulation phase उसके बाद start होगा, like first wave के बाद. हाँ, मतलब अभी 0, 1, 2 के लिए नीचे घूम रहा है, 1 के ऊपर क्लोजिंग देगा. Then it is like ये third wave में. तब वो थर्ड वेव में जाएगा ना, फिर तो वो 250 तक तो गया ही गया यार. हाँ सर, 240 250 लेवल तक तो भी जाएगा ही जाएगा बेटा. अब एक्यूमुलेशन फेज है दोनों का. लेकिन द प्रॉब्लम इज यहाँ पे एक्यूमुलेशन फेज में घुस नहीं सकते यार. जब तक 1 को ना निकाले, जब तक वो 1 के ऊपर ना निकले. अब ऐसे सोच, अगर SBI को ऊपर जाना है तो बैंक निफ्टी को तो ऊपर जाना पड़ेगा ना. Yes, sir. तो अगर बैंक निफ्टी बाय में चली गई फिर तो मैं गिरते हुए भी SBI को पकड़ लूंगा. Yes, sir. बट अगर बैंक निफ्टी क्लैरिटी नहीं देगी तो मैं SBI में क्यों हाथ डालूंगा. Yes, sir. इंडेक्स ही मेन प्रॉब्लम है सर इसमें. हमेशा you need to keep index and equity in tandem. All right. Yes, sir. Right. Any other questions, beta? सर हेलो. हाँ सर, एक तो इसके लिए कल सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करना पड़ेगा सर, और कॉस्ट क्या है सर आपकी कोर्स की? ये वो आई थिंक जो भी काउंसलर्स हैं बेटा वो आपको बता देंगे. आई डोंट नो द कमर्शियल पार्ट ऑफ इट. सॉफ्टवेयर इज अ पार्ट ऑफ कोर्स. May I know your name, please? Kanhaiya is there. He will get in touch with you. Sir, Ashish this side. Kindly tell about IRCTC. आज अभी चार्ट अपडेटेड नहीं है. Okay. उसका वो EOD वो फ्यूचर ऑप्शंस में नहीं है ना बेटा. Okay. So that data only comes in the night. And I don't have that data in this laptop. Hello. सर सॉफ्टवेयर सर. हाँ. कौन सा यूज करना पड़ेगा सर सॉफ्टवेयर के लिए? ये हम सब देंगे बेटा. मेटास्टॉक है. मैं इतना बुढ़ा हो चुका हूँ, अब लेटेस्ट सॉफ्टवेयर मेरे बस के नहीं है. Sir, in IRCTC it is showing 6,500 rupees as a target. बेटा अब इस वक्त चार्ट नहीं है और सारे स्टॉक्स याद नहीं रहते मुझे. Okay. सर मैं आस्क अ क्वेश्चन. मैं पुनीत बोल रहा हूँ. हाँ बेटा बोल. सर जैसे हमने बात करी थी कि वो 0 और 1 में छोटे टाइम फ्रेम में भी चल रहा था अलग से, तो सर जब छोटा इलियट जिस समय नॉइस क्रिएट कर रहा है उस समय हमें बड़े इलियट पे ध्यान देना चाहिए? नहीं, छोटे इलियट को पकड़, कॉल पुट दोनों पकड़ ले. ओके, हेजिंग. अब इसके बाद एक तरफ धक्का दे देंगे ना. ओके. मैं सवाल पूछ सकता हूँ? No, but then the issue is you have to be very good with your options because time value and volatility will kill you. वेगा और थीटा तेरी जान ले लेगा बेटा. सर अल्टीमेटली लॉस भी वही होता है. हाँ तो वो वेगा थीटा तो वही सब तो पढ़ना पड़ेगा ना. यस सर. I mean understand something बेटा. You know, सर मैं पूछ सकता हूँ क्या? What I have always felt is, I've really felt bad about it. Everyone is ready to invest any amount of money in stock markets, right? But once it comes to educating yourself, people are so stingy. मुझे नहीं समझ में आता यार कि आपको क्या इतनी सी कॉस्ट देनी है यार. वो एक स्टॉप लॉस भी बचा गए तो सारे पैसे रिकवर हो गए. I mean, I've never understood this mindset, why people don't want to do it. At the end of it, educating yourself. Hello. हाँ बेटा. Sir, this is Nitin speaking. हाँ Nitin. Yeah, actually I missed the first 10-15 minutes, so I
couldn't get. But I'm interested in this course. You missed the theoretical part, beta. So that's why I couldn't follow. But Yeah, I'd like to. They followed it, but there would be a recording. Talk to the guy here; he'll probably give you the recording. I have in the chat. I have sent my mobile number and name, and asked for the course details also. And one more thing, sir, is this course useful only for options trading? Because I have not traded options till date. No, this course is for Elliott wave, yaar. Yeah, that's what. No, Option trading is going to be a separate thing. You need to talk to the counselors, right? Now understand what I'm talking about are two things. One is, do you know technicals or not? That is the first one. I know technicals, sir. I know technicals. If you know technicals, opt for Elliott and derivatives. Okay. They will, I mean, those programs can be constructed custom-wise because they are modular in nature. Okay. Sir, Neeraj ji has a question. Neeraj ji, please speak. Hello. सर नीरज बात कर रहा हूँ. हाँ नीरज बोल. सर नमस्ते. नमस्ते. सर मुझे ना 2-3 बहुत छोटी बातें पूछनी है. आप शायद मुझे वैसे पहचान नहीं पा रहे हो. मैं 2017 बैच से नीरज निदान. अच्छा नीरज बता बेटा. एक तो ना गुरुजी जो आपने वो दिखाया सेटअप दिखाया, उसमें जो ऊपर डॉट आया था उसका मतलब है कि वहां से अब मार्केट ओवरसोल्ड है, राइट? हाँ, ये नई डेवलपमेंट है यार. और दूसरा ये जो ऑप्शन वोलेटिलिटी का मैं एक इंडिकेटर देख रहा हूँ, उसकी क्या रेंज रखते हैं आप? कौन सा ऑप्शन वोलेटिलिटी का? इसमें अभी जो आपने ट्रेडिंग सेटअप लगाया था ना, उसमें ऊपर एक वो चल रहा था. वो मेटा स्टॉक में जो बना हुआ वो ही है. अच्छा, तो ये मेटा स्टॉक अब वही वाला है कि नया अपग्रेडेड है? वही वाला है, कुछ नहीं बदला. ठीक है, फिर तो मैं निकाल लूंगा. तेरे पास सब कुछ है. तेरे पास ये लाइनें कैसे बन रही हैं वो भी है. हाँ, वो तो AOZZ से बन जाएगी. AOZZ से बन रही है यार, तुझे पता तो है. मैं बस वो समझने की कोशिश कर रहा था. आपने जो दिखाया ना 261, मैं वही टारगेट लेके बैठा था. तेरे टाइम पे ही हमने लेवल निकाल लिया था ना निफ्टी गिरने का, कि तेरे से 1 साल बाद निकाला था? ना मेरे टाइम पे निकल गया था गुरुदेव. ओके गाइस, 2015 में आ चुका था, ये बैठा हुआ है निफ्टी फॉल. वो उसी समय देख चुके थे. हाँ ठीक है गुरुजी. Guys, any more questions? Sir, how to get? Sir, another question, Chirag. Hello. Sir, hello. हाँ बेटा बोल. Sir, in the last session, you made a projection that Nifty could go up to 12,700 or 800 probably. Yeah. And in the same class, sir, you said time correction 60% होना चाहिए. हाँ. तो सर बेस्ड ऑन दैट अभी हम 4-5 साल से पहले क्या हम नहीं देख पाएंगे 12,000 का लेवल? नहीं, आ सकता है बेटा, अगर क्योंकि अगर ये टाइम करेक्शन जो है वो तो 3rd 4th में हो गया ना जी. अब फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस मार्केट का 7,500 का स्टॉप लॉस है यार जी. अब अगर ऐसे सोच तो 7,500 का स्टॉप लॉस कोई भी बोलेगा क्या बेवकूफी वाली बात है, नहीं? बट दैट इज Elliott, so that is why you need to switch to hourly chart now. तो सर ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस साल में 12,700 हिट नहीं कर सकता यार? इतना ऑप्टिमिस्टिक क्या हो, कैसे हो गया? कोरोना खत्म हो गया है क्या? नहीं सर, जस्ट मतलब जो प्रोजेक्शन आया था टाइम करेक्शन. People are asking question, why is this market going up? Is there a reason for market going up? Tell me. Fundamentally तो सर ऐसा कुछ नहीं. So that is the issue, right? Guys, I'll do one thing for you. Kanhaiya is here, right? Last question है सर एक प्लीज आपसे. हाँ बोल. सर मैंने ना रिसेंटली सर लॉकडाउन से पहले ITO आपकी क्लास के लिए आता सर मैं, जो एक सैटरडे संडे में होता ना सर. हाँ.
तो सर मेरे को मतलब बहुत अच्छा तरीका था सर, जैसे आप पढ़ाते हो बताते हो, बिल्कुल बहुत प्यारा तरीका सर आपका बताने का सब चीज। तो फिर आजा, क्या सोच रहा है? सर इशू सिर्फ लैंग्वेज है सर, मैंने तब भी तो वो उसकी टेंशन छोड़ दे, मैं बैठा हूं ना। अगर सर आप मतलब अशोक जैन सर अगर ये चीज बोलते हैं ना कि ठीक है बेटा लैंग्वेज का कोई इशू नहीं आएगा तेरे को, तो मैं कल ही ज्वाइन करता हूँ सर। हाँ कोई इशू नहीं है, मैं बैठा हूँ, मेरी सिर दर्द है, तेरी नहीं है वो। सर अशोक सर, तरुण दिस साइड सर, तरुण गोयल मथुर फ्रॉम मथुरा सर। हाँ बोल बेटा। सर गुड इवनिंग सर। ये अभी भैया ने बोला ना ये लैंग्वेज इशू है भाई, मैं इनको बता दूं कि मैं भी हिंदी बोर्ड से हूँ और मैंने 2016 में सर का बैच ज्वाइन किया था और मुझे लैंग्वेज की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई सर की साइड से। थोड़ा दोस्त इंग्लिश की थोड़ी प्रॉब्लम हो, बाकी बिल्कुल तो बेटा वो यार हम कोई अंग्रेज है उतनी हिंदी मैं भी जानता हूँ यार। और सुन मजे की बात एक बोलूं, हम सब हिंदी में ही गाली देते हैं। Sir, hello sir. Can I ask a question? Yeah, sure. Sir, my name is Suresh. I would just like to know which course is suitable for a beginner. I don't know much of technicals or anything. I would just like to know. Do one This thing. course is good for beginner. Send your query to Kanhaiya here, and the right counselor will get in touch with you. Then you talk to me. We will take a conference call. Okay? Okay, sir. गुरुदेव एक छोटा सा सवाल मुझे पूछना है आपसे। हाँ बेटा। ये जो नीरज जी बोल रहा हूँ मैं, ये जो नया वाला कोर्स आपने स्टार्ट किया उसमें आप गैन का टाइम फॉर्मेशन भी पकड़ने वाले हो क्या? थोड़ा सा पढ़ाऊंगा। वो पूरा कब बताओगे गुरुदेव? सर वो कर लेना यार। सर आपने बोला था 2016 में कि मैं इसको बता के जाऊंगा। देखो सब जानते हैं आपने प्रॉमिस किया था कि एक बार तो अब मैं बता के ही जाऊंगा। हाँ वो तो मैं आज भी बोल रहा हूँ, लेकिन ये वो नहीं है, ये ज्ञान दूसरा है। वो नहीं है, वो तो आज भी वैसे ही है, प्रॉमिस है तुम्हारे साथ वो। सर आपने बोला था कि मैं सबको रिवील करके जाऊंगा अपनी आईडी पे हाँ, पोस्ट करके वो जाऊंगा। मैं अपनी फेसबुक की आईडी पे आज भी बोल रहा हूँ, दे के जाऊंगा। तो सर अभी मैं आपकी क्लास ज्वाइन कर सकता हूँ ना सर, अगर आप इंग्लिश का मतलब कोई इशू नहीं आएगा तो मैं। अरे यार बेटे तुझे कह दिया, भूल जा, ये कहानी नहीं है। सर इसमें सर योगेश शर्मा सर, इसमें टाइमिंग एंड प्लेसेस का कंफर्म हो पाएगा या जूम ऑनलाइन क्लासेस होंगी सारी? अभी तो ऑनलाइन ले ले, उसके बाद जब कॉलेज खुल जाएंगे तब वो कर लेंगे। ओके तो ये सर मैं अपना है ना नंबर चैट मैसेज पे सेंड कर रहा हूँ, तो प्लीज आप काउंसलर जी को बोल दीजिए, एक बार कॉल कर लेंगे और एक टाइमिंग वगैरह अरेंज कर लेंगे जो भी है। हाँ मैं अभी बात करता हूँ कन्हैया। यस सर, आई विल अरेंज अ कॉल। हाँ बेटा एक बात सुनो, जिस को कोर्स करना है कन्हैया को नंबर भेजो, मैं और अभी जिसको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए अभी मेरे से बात कर लो। सबके सामने शर्म आ रही है तो कन्हैया को बोल देना, 1-to-1 ऑर्गेनाइज कर देंगे। कन्हैया जी एक्चुअली में देयर इज वन क्वेश्चन, जस्ट वी देयर आर सम गाइस वी आर ऑल बिगिनर, तो जस्ट वी वांट टू स्टार्ट विद टेक्निकल एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन, मतलब तो दैट्स व्हाई प्लीज कोऑर्डिनेट विद अस, वी आर सेंडिंग आवर फोन नंबर। Sure Yogesh ji, I'll arrange a call for you by today. And just we are we are interested only with right now with Ashok sir, so just try to arrange classes only with Ashok sir if any possible. Every class will be conducted by Ashok Jain sir. भाई एक बात सुन, ये कॉलेज है, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, कोई कोचिंग सेंटर थोड़ी है कि अकेला ही सारी क्लासें पढ़ा लूंगा। कितना काम कराएगा मेरे से? नहीं सर एक्चुअली में अभी देखिए आप अब देखिए मत कर, तू आएगा तो तू मेरे पास आया है और मेरे स्टूडेंट मेरे साथ क्या मैं कल मिल सकता हूं सर? वो जिंदगी भर के लिए होते हैं सर जब किसी सुपरस्टार को देख लेते हैं ना तो जूनियर्स की मूवी देखने का मन नहीं करता। नहीं तो, मत ले, जो भी होगा बेटा ये पूरा कोर्स मेरे हाथ का डिजाइन है, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे ही उस पाठ को पढ़ाते हैं और मेरी एक कंडीशन हमेशा होती है, पढ़ाएगा वो जो ट्रेड करता है रोज। बिल्कुल ये सर यही चाहिए था सर। मैं प्रोफेसर साहब को नहीं दूंगा क्लास। सर क्या मैं कल मिल सकता हूँ आपसे ITO?
आईटीओ तो आ ही नहीं रहा भाई, बुड्ढा हूँ, घर वाले घर से बाहर ही नहीं निकलने देते। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर। कन्हैया जी मैंने नंबर भेज दिया, आप प्लीज एक बार कॉल कर लेना। Once again, I'm telling you guys, जिसको ज्वाइन करना है अभी कन्हैया को नंबर भेज दो। कोई सवाल पूछने हैं मेरे से पूछ लो, मुझे 2 मिनट बाथरूम जाने का ब्रेक दे दो बस। मैं क्वेश्चन बता दीजिए सर। हेलो बताइए सर, ल्यूपिन में आज क्या कहते हैं पोजीशन बनाई थी और भयंकर तरीके से फंस गया, तो अभी उसे सस्टेन करूं या क्या करूं, उसका आरोप कर दूं? क्या किया है तूने? सर मैंने ल्यूपिन में 1015 पे बाइंग पोजीशन बना ली और मैं फंस गया उसमें बहुत बुरी। क्या फ्यूचर खरीदा, इक्विटी खरीदी? नहीं, इक्विटी खरीदा है मैंने। कितने शेयर खरीदे हैं? सर मैंने 200 शेयर लिए हैं। छोड़ दे अभी, फार्मा तेज है। छोड़ दो मतलब अभी उन्हें होल्ड करके रखूं ना? बिल्कुल बिल्कुल, फार्मा में बिल्कुल मत काटियो। बिल्कुल सर, क्योंकि मैं एक तो 200 शेयर मैंने बाय करे, मैंने हाई रेट पे ले लिए 1015 पे। कोई बात नहीं, सुन हाँ, पैसे और बड़े हैं ना? हाँ सर थोड़े बहुत तो हैं। ठीक है, अब एक काम कर जी, आप कोर्स ज्वाइन कर, इलियट पकड़, नीचे से वो फिर खरीदवाएगा। अगर ऊपर नहीं गया तो नीचे से खरीद के तब कट जाएगा। ठीक है सर, वो जो बाकी के पैसे हैं बस वो फीस के लिए हैं, तो एक बार बात कर लेते हैं। वो सही जगह इन्वेस्टमेंट करने कोचिंग के लिए। पहले पैसे खर्च कर ले, उसके बाद पैसे भी कमा लियो। नहीं, इसीलिए कन्हैया जी को वो कॉल करेंगे आफ्टर दिस, मतलब मीटिंग के बाद वो कॉल करते हैं, फिर हम मैनेज कर लेते हैं जैसे भी है। हाँ, मैं 1 मिनट वॉशरूम वो क्या आ रहा हूँ कन्हैया। भाई इतने लोग लाइन पे हैं। हेलो, इतने लोग लाइन पे हैं, प्लीज तो अगर कोई सीनियर है तो औरो फार्मा भी बता दो यार, 2 जगह मैं फंसा पड़ा हूँ। औरो फार्मा भी होल्ड करूँ कि नहीं करूँ? एक सेकंड भाई, एक सेकंड। कन्हैया जी, हाँ बताइए। मैंने ना 2018 में ज्वाइन किया था अपने बेटे के साथ, ठीक है, लेकिन मैं 4-5 क्लास अटेंड कर पाया सर, कर नहीं पाया ड्यू टू सम एक्सीडेंट माय फैमिली। तो आई हैड डिपॉजिट ऑल माय फीस, पर क्या दोबारा देनी पड़ेगी या फिर से दोबारा ज्वाइन करने के लिए? भाई नहीं, आपने अगर फी दिया तो यू कैन कंटिन्यू, देयर इज नो इशू विद दैट। तो 2018 में किया था, बाद में बीच में वो गैप आ गया बिकॉज माय फादर एक्सपायर्ड बेसिकली। सो अब तो दोनों मैंने बच्चे का भी दिया था, अपना भी दिया था मैंने फीस। तो अभी बच्चा तो नहीं करना था, मैं करना चाहता हूँ, तो शुड आई डू आई हैव टू डिपॉजिट द फीस अगेन और इट विल बी एडजस्टेड? मैं नो योर नेम सर। माय नेम इज जीके कौशिक। कौशिक जी, व्हाट आई विल डू इज आई विल अरेंज अ सेपरेट कॉल फॉर यू, राइट? ठीक है, आई विल बी शुड आई पुट माय नंबर इन दैट? नंबर है मेरा आपके पास? हाँ, आपने किस नाम से रजिस्टर किया हुआ है? जीके कौशिक से होगा या कैरियर कैलकुलेशन के नाम से होगा? ठीक है, तो आपका नंबर है मेरे पास, आई विल अरेंज अ कॉल फॉर यू। फाइन सर, फाइन, थैंक यू। तो अभी जैन आएंगे दोबारा बात करने के लिए, तो शुड आई स्पीक टू हिम और व्हाट? You don't need to speak to Jain sahab. Someone from my team will give you a call. ठीक है, फाइन करिए सर, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। Should I just हेलो, अभी कोई और फार्म पूछ रहा था भाई। हेलो जी, मैं पूछ रहा था औरो फार्मा के बारे में, योगेश शर्मा। सर मैं स्टॉक के बारे में नहीं बता सकता। कितने पे लिया था आपने? कौन है, क्या सवाल है? सर ये अभी एक औरो फार्मा पूछ रहे हैं सर अभी। मेरे ख्याल से होगा लिया कैलकुलेशन सिर्फ अगर इंस्टेंट दे रहा तो। कौन सा स्टॉक बेटा? सर वही सर, फार्मा का, औरो फार्मा, अरबिंदो फार्मा। अरबिंदो अभी नीचे जा रहा है, अभी मत खरीदी। अशोक सर। हाँ बेटा। सर यश बोल रहा हूँ, एक छोटी सी टेस्टिमनी दे दूं आपके बिहाफ पे? आके यहाँ लगा के इसी के लिए वो ले लूं बैंड। हेलो सर, यश बोल रहा हूँ। मिल जाएंगे बैंड वो। मेरा शेड्यूल, मेरा बैग उठाइए। क्या हाल है यश? वेरी वेल सर। सर आज 1:25 पे बैंक निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस तोड़ा था, उसके बाद उसको ऊपर भागना ही था। 21,600 की जो पुट थी वो सेल करी थी, 107 की 55 पे बाय करी। क्यों बाय करके आया यार, नीचे की खरीद जाता ना। सर पुट सेल करी थी सर।
तभी तो कह रहा हूँ नीचे वाली खरीद जाता 21,500 की, कल प्रॉफिट तो लॉ की था, ऊपर खुल गया तो और पैसे आ जाते। इतना बहुत है सर अभी के लिए। ठीक है यश सर चाहिए ना दो। ऑलराइट गाइस। सर एक टाटा मोटर्स आज खरीदा था। हाँ बेटा बोल। सर टाटा मोटर्स आज खरीदा था कितने पे? 125 पे। रुक जा तुझे 126 टाटा पे। मोटर्स का यही चार्ट दिखाऊंगा। सर आवरली चार्ट देख के 126 पे लिया था। 1 मिनट रुक। हाँ अब बोल टाटा मोटर्स। सर बॉट एट 126। 1 मिनट रुक जा, तू खुद बताई बेटा, मैं कुछ नहीं बता रहा तुझे, तूने सेमिनार अटेंड किया है। जी अशोक सर इतना एक चीज बता दीजिए, मैं 15 मिनट का चार्ट देख के ट्रेड लेता हूँ, लेकिन उसमें जो भी पैटर्न बनते हैं ना वो मेरे को तो फॉल्स ही लगते हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि उस 15 मिनट के चार्ट पे अगर कोई पैटर्न बनना है तो सस्टेन ही नहीं कर पाता वो। ये देख 15 मिनट का चार्ट क्यों नहीं सस्टेन करेगा अगर वेव काउंट पकड़ेगा तो। ये देख कहां से इसने बाय में बिठाया था 1 2 देख, तू थक जाएगा, वो कटेगा नहीं। सर ये तो आता ही नहीं है ना। तभी तो कह रहा हूँ सीखना बाबू। सर पैसे लगा लेगा, लॉस दे देगा, सीखते वक्त 5,000 रुपए देने में जान निकलती है। सर सीखने के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड था, लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाया। सेकंड क्या है कि किसी पे ट्रस्ट ही नहीं हो पा रहा था। लेकिन ये कि आपका सेमिनार हुआ है तो थोड़ा सा ट्रस्ट जगा है कि हाँ इतने बहुत सीनियर और आपका नाम भी है, तो अब थोड़ा सा विश्वास है कि चलो सीखेंगे, अच्छा होगा कुछ। सीख ले यार, ऑनलाइन चलेगा, जब कॉलेज खुलेंगे तब भी कब पढ़ा दूंगा, वापस तो आ ही सकते हो हमेशा, वो तो किसी ने रोका ही नहीं है। जी सर ये तो है सर। तो कन्हैया को अपना नंबर भेज दिया मैंने, चैट पे भेज दिया, योगेश शर्मा के नाम से है 9654 करके। कन्हैया जी नंबर भेज दिया मैंने आपको चैट पे। डन योगेश जी, मैं आपके लिए कॉल अरेंज करता हूँ। सर क्वेश्चन मेरा था सर टाटा मोटर्स वाला। हाँ 126 पे खरीदा है सर मैंने आज। तुझे दिखाया तो अभी टाटा मोटर्स। रुक अब खुद ही बताएगा। हेलो पति ये तेरा टाटा मोटर्स। सर ये आवरली में सर ये का चार्ट है, दिख रहा है, इसके ऊपर भाग गया तो भाग ही जाएगा। दिखने लग गया सर, isn't it already in third wave? Yeah, it is in a third wave as long as it doesn't take out this level. Okay. 122 के नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। क्लियर है? जी सर क्लियर है। तो सर क्लोजिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर आज 126 के ऊपर काट तो दिया। हाँ इसका क्लोजिंग के पहले कुछ मत करी, अगर क्लोजिंग नहीं देखनी है तो बता रहा हूं। एक 122 मतलब ये 120 के नीचे क्लोज इंट्राडे में ट्रेड करेगा, तब सोच लो क्या क्या करना है। ओके सर। ठीक है जी सर, पूरा एटीआर ले लिया। हाँ पूरा एटीआर ले ले। ठीक है सर, थैंक यू। और 14 दिन का नहीं जी, फिर 40। ओके ओके। और कोई बेटा? सर आशीष मित्तल दिस साइड। चाय और एक देना भाई।
Sir, I want to learn GAN with you, na? GAN और इलियट दोनों इकट्ठे होंगे. Okay. When it is starting? कन्हैया से बात कर. Okay, sir. Give him the number. Okay, sir. अभी भेज दे. Kanhaiya ji, kindly write down the number. It is 8368023519. It is already with you. We have attached through the this. Na, so I have already given you the number. Anyone else? Yes sir, my question. प्रकाश हाँ बेटा बोल. सर आपने भी बोला था कि SBI 205 के ऊपर जाएगा, तो इसके लिए बैंक निफ्टी को भी ऊपर चढ़ना पड़ेगा, राइट? अगर बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जाएगी तो SBI तो ऊपर जा ही नहीं सकता यार. नहीं वो तो बात सही है आपकी, लेकिन मैं ये बोल रहा था कि बैंक निफ्टी कितना ऊपर तब जाएगी, 205 क्रॉस करना पड़ेगा इसको. देख इस वक्त मार्केट ना बहुत डाइसी हुई है. मैं तो इलियट पकड़ के चल रहा हूँ आधे घंटे की. जी सर. जहां मुझे गड़बड़ लगती है वहां मैं हेज में घुस जाता हूँ. समझ गया? जी सर, थैंक यू. बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो, क्या करते हो? मैं सर कैश करता हूँ, कैश में काम करता हूँ. किसमें? कैश में इंट्राडे. अच्छा ठीक है. कैश में तो क्या टेंशन है यार, स्टॉप लॉस लगा के काम कर. इलियट में जहां पकड़ी गई वहां भाग जाएगी. 5 मिनट की इलियट पकड़ ले. हाँ बस वही 15 मिनट का पकड़ता हूँ सर मैं. हाँ 5 मिनट की पकड़ इलियट. ठीक है. इलियट हमेशा 2 फ्रेम पे चला इंट्राडे में. हमने भी बोला भाई 5 मिनट वाले में पोजीशन कम करता जा और आधे घंटे में लास्ट की रेजिडुअल पोजीशन छोड़ दे. ओके. सर मैंने एक TCS की सर ली थी कॉल. TCS. थैंक यू सर. बोल बेटा. हेलो. हाँ सर. जब कौशिक हूँ यहाँ पर एंड मैंने 2018 में अटेंड किया था प्रोग्राम, बट आई कुड अटेंड ओनली यू नो द 5 क्लासेस. मैंने कन्हैया से शेयर किया है, इनफैक्ट मैं और मेरे बेटे ने ज्वाइन किया था. हाँ. बट ड्यू टू सम एक्सीडेंट इन माय फैमिली तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था. एंड दोनों के फीस डिपॉजिट किया था मैंने. अच्छा. तो यही कह रहा था कि मैं अभी अगर करेंगे तो उसमें दोबारा हैव टू डिपॉजिट फीस और इट विल बी एडजस्टेड. आई हैव नो आइडिया बेटा. एडमिन मुझे कुछ भी नहीं पता है, तो कन्हैया इज द गाय टू टॉक टू. Alright, because even Kanhaiya cannot take that decision, so you give your number, they'll talk about it. मैंने नंबर दिया था, वो लड़की थी पहले आपके यहाँ पे, वो आई एम जस्ट मिसिंग हर नेम. क्या नाम था उसका? लड़की का नाम भूल गया मैं सर, नाम एग्जैक्टली याद नहीं मुझे. मैं बताता हूँ. आई डोंट नो. Yes, I remember you run a coaching institute, right? Yeah, मेरा नहीं सर, मेरा you know placement consultancy basically placement. Yeah, okay. But due to you know accident, my father you know. Yeah, so don't worry. Just I leave the number to Kanhaiya and someone will get in touch with you. I'll be thankful to you, sir. Do that, okay? Thank you. One question is there. Yeah, beta. I have a question on TCS. Some days back I just bought some calls. TCS पर वो consolidation में चल रहा है. मुझे breakout लग रहा था but दिया नहीं है उसने. कौन सा? TCS यार ये बहुत भाग गया है. I'm showing you the chart. पता नहीं कब तक का 200-250-300. I'm not looking at IT as of now. IT बहुत भाग गया यार. ले लो. ये देख. ठीक है. क्या कंसोलिडेशन में है? कुछ नहीं, बैठा रहे यार, इसके ऊपर भाग जाएगा. 2290 के ऊपर. ये आज का हाई था सर. 2290, 2289 आज का हाई था. इसके ऊपर जहां क्लोजिंग देगा पागल हो जाएगा. मैंने सर इसकी कॉल्स पकड़ी हैं एक्चुअली और ऊपर की बेच के चल. अच्छा. सिर्फ कॉल पे मत छोड़. ओके. फ्यूचर सर, फ्यूचर सेल कर दिया जाए या कॉल ही ऊपर की सेल करें भाई? एक्चुअली इसकी 4-5 ली हुई हैं कॉल्स. कोई बात नहीं है.
बट वो कौन नीचे सी किस लेवल की ली है? 2340 के लिए 2340 की 4-5 ले लिया, एक फ्यूचर शॉट मार दी और नीचे मारेगा तो क्या लग रहा है सर वैसे आपको इलियट के हिसाब से क्या लग रहा है या चार्ट्स के हिसाब अभी से? कंसोलिडेशन में ही है यार, लेकिन मुझे अभी एक ब्रेकआउट दिख रहा है ऊपर। ले नहीं रहा, मैं भी कई दिन से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बट आ नहीं रहा। इसकी देखना कितनी जबरदस्त सपोर्ट है यार नीचे। हाँ 2245 ब्रेक नहीं कर रहा। या बट द प्रॉब्लम इन दिस इज, ऐसे सिनेरियो में यार कॉल खरीद के फंसने वाला काम होता है ना बेटा, तुझे वेगा और थीटा मार देगा। हाँ हाँ वही, वो कॉल की वैल्यू कम होगी। Have you done any course on this options or Elliott? नहीं, I have not done any course till now. So why don't you do that यार? It hardly costs any money बेटा। जो इतने पैसे लगा रहा है 5-10 हजार रुपया दे के सीख ले। हाँ नहीं, एजुकेशन काम तो आएगी। जी वो तो ठीक है। इसका तो क्या लग जाएगा ब्रेकआउट का लग रहा है? हाँ ब्रेकआउट लग रहा है यार इस वीक में। Hopefully, but my issue is that now market is coming to a level जहां पे तेरी टाइम वैल्यू बहुत जल्दी उड़ेगी। We are very close to an expiry. 27th की है सर, 27th की है एक्सपायरी तो। हाँ तो तेरे पास वर्किंग डेज क्या बने? हाँ 3 है इस वाले, उसमें 3 रह गए। तूने कितने की खरीदी है बेटा? एवरेज है अराउंड सर 45 की एवरेज है। 45 डिवाइड कर उसको विद द नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज लेफ्ट। नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज आर अप्रोक्सीमेटली 7 और 8। अगर 8 भी है तो तेरे 7 पॉइंट तो रोज के उड़ाएगा। How will you compensate that? 7 पॉइंट रोज के कैसे उड़ाएगा सर? जीरो पे आप कंसीडर करें। That is the thumb rule of time value ना, 45 out of money, right? So it has a value of 45 rupees which will become 0 by 27th August. So per day decay is going to be 7 to 8 rupees. You get that? तो फ्यूचर को सर करा जाए सेल, इसमें फिर कैसे करा जाए हेज करने के लिए? अभी नहीं, आई थिंक यू अब सौदा डाल दिया है तो ऊपर की कॉलें बेच ले। अगर बेच, कितनी खरीदी है ये? 4 खरीदी है ना? हाँ जी 4 है 5 है, आई थिंक 5 है। तू एक काम कर, 23,000 की कॉल बेच दे 2 लॉट। अच्छा। और ये चलने दे 23,000 की। अगर नीचे रह गया 2300 की 23,20 की बेच दे 2 कॉलें। अच्छा ठीक है। और बैठ आराम से। 4 खरीदी है 5 खरीदी है? इसकी 5 है सर, 5 है, देख लिया मैंने। 5 नहीं है ना, 6 कर उनको। ओके। 23,20 की 3 बेच। ठीक है। 23,60 की 3 बेच। 2360 की भी। हाँ बटरफ्लाई बना के छोड़ दे। अच्छा। अगर ऊपर भागेगा तो नीची वाली में लॉस बुक करके काट दियो। 2320 वाली में। हाँ 2320 में लॉस बुक कर लियो बाद में। ओके। तब ऊपर वाली तू घटा भी सकता है ना, उनमें भी तो प्रॉफिट आ जाएगा। 2340 वाली बचा लेगी। ठीक है ठीक है। 3 और 3 6 टोटल 6 बेच दी जाए। हाँ क्योंकि बटरफ्लाई तभी बनती है बीच के 6, ऊपर नीचे 3-3। बीच के 6 लिए हों और ऊपर नीचे 3-3 बेचे हों। हाँ बटरफ्लाई सोचना बेटा, उसके विंग्स होते हैं, तूने विंग्स क्रिएट कर दिए। हाँ बॉडी क्रिएट कर दे। प्रॉफिटेबल कब होगी सर ये स्ट्रैटेजी? ये वाली कैसे प्रॉफिटेबल मिलेगी? ये प्रॉफिटेबल तब होगी अगर ये रेंज बाउंड हो गई तो पैसे दे जाएगी। एक्चुअली सर मैंने आज नहीं बेची, मैंने आज नीली कॉल से ली हुई है, मतलब हो गए हैं 5-6 दिन 7 दिन। अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई है? अराउंड 25 है इस वक्त वैल्यू। हाँ तो अब तो यार अब तो बचेगी भी नहीं ना। अब तो ऊपर की बेच दे, भले ही अगर पैसे है तो 10 लॉट बेच दे। ओके ओके। वो फिर यार ऐसे सोच बेटा, इतने से पैसों के लिए बचाने के लिए कितना कैपिटल ब्लॉक करेगा, ये भी तो सोच।
नहीं एक्चुअली सर वो ये वही टाइम डिके मार रहा है, ये कंसोलिडेट टाइम डिके तुझे मार देगा बेटा, ठीक से लेवल पे 2-3 बार लेवल पे आया, बट वो प्रॉफिट में नहीं थी तो मैंने निकाली नहीं, लेवल पे तो 2। हाँ, तो वो टाइम डिके इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेटा. थीटा एंड वेगा आर टू वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स टू अंडरस्टैंड. And look at this market, look at this, it is falling market, दिख रही है. और अगर इसने नीचे इसको तोड़ दिया ना 2225 के नीचे क्लोजिंग दे गई, फिर ये नीचे ही ठुक जाएगा गंदा वाला. हाँ 2225 पे एक हैमर बना हुआ था, देखा था. हाँ, उसके नीचे अगर गई तो बहुत जान लेगा. हाँ वही लास्ट स्टॉप लॉस मेरा वही था, 2225 का ही था लास्ट. हेलो हेलो सर, सर क्या हम क्लोज करते हैं? लेट्स क्लोज दिस वेबिनार. ठीक है बेटा, फिर हम 101 कर लेंगे जिनसे भी है बात. ठीक है, जिसको भी 101 करना हो कन्हैया कोऑर्डिनेट करके मेरे साथ शुरू कर दे. डेफिनेटली सर. Okay, thank you, sir. Good day. Right, beta. Have a great day, guys. Enjoy yourself. Good night, Thanks sir. a lot, sir. Bye. Bye. Take care. Thank you, sir. Thank you.